صحرا کی وسطوں میں کون کرے گا تسخیر؟ 16ویں چولستان جیپ ریلی کا دوسرا روز اختتام پذیر ہو گیا۔ پریپیڈ کیٹیگری ریس میں 220 کلومیٹر ٹریک کا پہلا راؤنڈ مکمل کر لیا گیا۔ صاحبزادہ سلطان محمد علی ٹریک 1 گھنٹہ 51 منٹ میں مکمل کر کے پہلی پوزیشن پر براجمان رہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ صحرا کی وسطوں میں کون کرے گا تسخیر؟ 16ویں چولستان جیپ ریلی کا دوسرا روز اختتام پذیر۔ پریپیڈ کیٹیگری ریس میں 220 کلومیٹر ٹریک کا پہلا راؤنڈ مکمل۔ 53 ریسز نے کلا دراوڑ سے ریس کا آغاز کیا۔ فراٹے بھرتی گاڑیاں کلا دراوڑ سے روہی کے مختلف تاریخی مقامات اور ٹوبوں سے ہوتی ہوئی مڈ پوائنٹ موجگڑھ اور پھر فشنگ پوائنٹ محمود والی ٹینکی پہنچی۔ صحرائی ریت کو روندتے ہوئے صاحبزادہ سلطان محمد علی نے 220 کلومیٹر کا ٹریک 1 گھنٹہ 51 منٹ 1 سیکنڈ میں طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جعفر مکسی ٹریک 1 گھنٹہ 55 منٹ میں طے کر کے دوسرے نمبر پر، جبکہ دفاعی چیمپئن میر نادر مکسی نے پہلا راؤنڈ 1 گھنٹہ 55 منٹ اور 15 سیکنڈ میں مکمل کر کے تیسرے نمبر پر رہے۔ پریپیڈ کیٹیگری کے دوسرے راؤنڈ کے بعد اتوار کو فائنل ریزلٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ریسرز کی جیپ ریلی میں انٹری، سبھی ڈرائیورز ایک سے بڑھ کر ایک۔ صاحبزادہ سلطان کا ریلی کے تیز ٹریک کو تسخیر کرنے کا عزم، دفاعی چیمپئن نادر مکسی کی خوبصورت ٹریکس کو سب سے پہلے پار کرنے کی خواہش۔ زین محمود بھی جیپ ریلی میں فتح کا جھنڈا گاڑنے کے لیے پرامید ہے۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ریسرز کی جیپ ریلی میں انٹری، سبھی ڈرائیورز ایک سے بڑھ کر ایک۔ صاحبزادہ سلطان کا تیز ٹریک کو تسخیر کرنے کا عزم، دفاعی چیمپئن نادر مکسی کی خوبصورت ٹریک کو سب سے پہلے پار کرنے کی خواہش۔ زین محمود بھی جیپ ریلی کے ٹریک پر فاتح کا جھنڈا گاڑنے کے لیے پرامید۔ ٹریک تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 16 سال سے جو چولستان جیپ ریلی ہو رہی ہے اس کا سب سے اچھا ٹریک اس سال ہے۔ ٹریک اچھا ٹریک تھا ماشاءاللہ، تیز ٹریک ہے اور راستے میں آپ نے کراؤڈ کتنا دیکھا ہے؟ کراؤڈ کافی لوگ، ٹپوں کے اوپر کافی لوگ کھڑے تھے، خاص طور ادھر تو بہت زیادہ لوگ۔ صوبائی وزیر توانائی ملک اختر بھی چولستان ریلی کے دیوانے، مصروفیت سے وقت نکال کر فائنل راؤنڈ دیکھنے کا عزم۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور عثمان بزدار کی قیادت میں چولستان جیپ ریلی انٹرنیشنل ایونٹ بن گیا ہے۔ اس طرح کے ایونٹ سے معیشت بہتر ہوتی ہے۔ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں سامنے نظر آ رہا ہے آپ کے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ کے انٹرنیشنل ویورز، انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس آتے ہیں، اور یہ ہماری چولستان جو جیپ ریلی ہے یہ اب ایک نیشنل ایونٹ تو تھا ہی تھا، لیکن اب یہ انٹرنیشنل ایونٹ بننے جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعت نون لیگ کے رہنما بھی جیپ ریلی کے دیوانے، سینئر رہنما چودھری سعود مجید بھی ریلی کا حصہ۔ ریلی جیتنے کے بعد پی ڈی ایم مارچ اسلام آباد پر توجہ مرکوز کرنے کا اعادہ بھی کیا۔ چولستان کے صحرا کی فضاؤں پر پیراگلائڈرز کا راج ہے۔ پیراگلائڈنگ کے مقابلوں نے سما باندھ دیا۔ ہوا کو چیرتے پیراگلائڈرز سیاحوں اور مقامی افراد کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ صحرائے چولستان میں جنگل میں منگل کا سما، چولستان کے صحرا کی فضاؤں پر پیراگلائڈرز کا راج۔ پیراگلائڈنگ کے مقابلوں نے سما باندھ دیا۔ ہوا کو چیرتے پیراگلائڈرز سیاحوں اور مقامی افراد کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ایک طرف جیپ ریلی کے نظارے دیکھنے کو ملے تو دوسری جانب شائقین پیراگلائڈنگ سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ٹی ٹی سی پی کے مطابق شائقین مناسب فیس دے کر پیراگلائڈنگ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ صحرائے چولستان میں ہر طرف گہما گہمی، دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے چولستان میں نیا شہر آباد، شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ ریگزار میں آباد عارضی شہر میں جنگل میں منگل کا سما ہے۔ شائقین کی تفریح کے لیے جھومر اور میوزک کا اہتمام کیا گیا۔ ڈھول کی تھا پر شائقین نے بھنگڑے بھی ڈالے۔ کھیل، سیاحت اور تفریح کا حسین امتزاج، چولستان جیپ ریلی کا میگا ایونٹ، صحرا کی طویل خاموشی میں خوشیوں کا سورج طلوع، بین الاقوامی اور مقامی سیاحوں نے صحرا کو آباد کر دیا۔ شائقین کی تفریح کے لیے جھومر اور میوزک کا اہتمام کیا گیا۔ لوک جھومر اور موسیقی نے سحر پھونک دیا۔ ڈھول کی تھاپ پر شائقین نے بھنگڑے بھی ڈالے۔ مقامی ہنر مندوں نے مٹی سے ماڈلز بنا کر خوب داد وصول کی۔ بادشاہی مسجد کے ماڈل نے زندہ دلانے لاہور کی یاد دلا دی۔ روہی چولستان کی ثقافت کا اہم ستون چولستان جیپ ریلی صحرا میں لگے ہینڈی کرافٹ سٹال، جنوبی پنجاب کی ثقافت کے امین، مٹی کے برتن، ہاتھوں سے بنی چادریں اور دیدہ زیب ڈیزائن والی چنریاں صحرا کے باسیوں کی ہنر مندی اور کارکردگی کی عمدہ مثال
कमाल। चोलिस्तान तरक्याती इदारा, भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी और स्मॉल इंडस्ट्रीज की खूबसूरत काविश सहरा की वीरानियों में सकाफत तहाइफ की खरीदारी का सामान मुहैया कर दिया। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, बहावलपुर। चोलिस्तान जीप रैली धूमधाम से जारी है। मुल्क भर से आए स्काउट्स ने भी कैंप विलेज कायम कर दिया। स्काउट्स का कहना था कि वो रैली से महसूस होने के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। चोलिस्तान डेजर्ट रैली पूरी आबोताब के साथ जारी है। इस मौके पर मुल्क भर से आए स्काउट्स भी किला दिरावड़ पहुंच गए और रोही में अपने कैंप सजा लिए। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से आने वाले स्काउट्स का कहना था कि वो हर साल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। लोगों की जिंदगियों को करीब से देखने का मौका मिलता है। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले स्काउट ने गुनगुनाकर अपनी आवाज का जादू भी जगाया। स्काउट्स ने अपने कैंप्स में मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत गैजेट्स तैयार किए जो उनकी तरबियत और महारत का शाहकार हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लाशारी, कला दिरावड़, रोही, चोलिस्तान। मुल्तान में सदरन पंजाब इंटरनेशनल स्क्वैश टूर्नामेंट जारी। दूसरे रोज मेल कैटेगरी के 5 मैचेस खेले गए। पहला मैच अली बुखारी ने जीत लिया। वसीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में सदरन पंजाब इंटरनेशनल स्क्वैश टूर्नामेंट जारी है। दूसरे रोज मेल कैटेगरी के 5 मैचेस हुए। पहले मैच में अली बुखारी ने फरहान जमा को हरा दिया। दूसरे मैच में अमाद फरीद ने नूर जमा को शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में द्रोशम खान ने दानिश अतस को हरा दिया। चौथा मैच नासिर इकबाल और 5वां मैच आसिम खान के नाम रहा। मैच के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने स्क्वैश खेली। इनका कहना था कि जिले इंतजामिया खेलों के फरोग के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। खुशी है मुल्तान पहली बार इंटरनेशनल स्क्वैश की मेजबानी कर रहा है। इतनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे मुल्तान के लोगों के लिए प्रोवाइड की है। बहुत अच्छा एक यूनिक एक्सपीरियंस है और नेशनल इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं खेलने के लिए। साथ साथ हमारे अपने जो साउथ पंजाब के खिलाड़ी थे वो भी यहाँ पे खेल चुके हैं। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने जीतने वाले खिलाड़ियों को शर्ट्स पेश की। कैमरामैन करार हैदर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मजीद आपको बताएं, 7 दिनों में 24 अशय खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हफ्तावार महंगाई की शरह 9.17% तक बुलंद। एक हफ्ते में महंगाई 0.81% मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियत के गरीब को चकरा देने वाले अदाद-ओ-शुमार जारी। मुल्तान की होल सेल मार्केट गला मंडी में दालों की कीमतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 5 रुपए से 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दाल चनी की कीमत 5,000 से बढ़कर 5,500 रुपए फी 40 किलोग्राम तक पहुंच गई। दाल चनी की कीमत 125 रुपए से 130 रुपए फी किलो पर आ गई, जबकि दाल मसूर की कीमतों में 5 से 7 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। गुज़िश्ता कीमत 4,600 से 5,000 रुपए फी 40 किलोग्राम हो गई। दाल मसूर 115 से 10 रुपए इजाफे के साथ 125 रुपए फी किलो हो गई। दालों की कीमतों में इजाफा तो हो गया। अभी हम दुकानदार को कहते हैं ना कि जी कल तो मैं इतने की दाल लेके गया हूँ, तो वो कहता है कि जी हुकूमत की गलती है सारी। पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया, दालों की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं, चीनी की कीमतें चेंज हो गई हैं। अभी समझ नहीं आ रही खरीदारी करनी कैसे है। चने सफेद की कीमत में 5 से 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। बेसन की कीमत 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दुकानदारों का कहना है कि कीमतें बढ़ते ही खरीदार तो परेशान होते ही हैं, साथ ही इनका कारोबार भी मुतासिर होता है। जो शहरी पहले खुल के सामान ले लिया करते थे, अब किलो की जगह आधा किलो चीज लेने लग गए, आधा किलो की जगह पाव चीज लेने लग गए। मुश्किल बहुत हो गई है यहाँ पे सामान लेने के लिए। शहरियों का कहना है कि हर रोज कीमतों में इजाफा मिलता है। हुकूमत नोटिस लेकर महंगाई कंट्रोल करने वाले इकदाम करे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की परेशानी में इजाफा कर दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च एक दिन का नहीं होगा, काफी दिन ठहरना होगा। हुकूमत ओपन बैलेट के जतन अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए कर रही है। सेनेट में मुश्तरका उम्मीदवार लाने का भी फैसला नहीं हुआ। यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर इख्तलाफ नहीं है। पीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में मजलिस अहरार इस्लाम पाकिस्तान के दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि पीटीआई को अपने अराकीन से ही खतरा है। सेनेट इलेक्शन में पैसे देने वाला और पैसे लेने वाला दोनों पीटीआई के ही हैं। हम अवाम की अमानत पर डाका नहीं डालने देंगे। जिस तरह कौमी और सूबाई असेंबली में धांधली की गई, वैसे ही सेनेट में की जा रही है। रिश्वत देने वाला भी पीटीआई, रिश्वत देने वाला भी पीटीआई, उसका वीडियो बनाने वाला भी पीटीआई, जिस घर में रिश्वत दी जा रही है वो भी पीटीआई, जो इस वक्त उसके दावेदार है वो भी पीटीआई, जो हंगामा है वो भी पीटीआई। उन्होंने कहा कि वो कौन सा हमारा मेंबर है जो हमारी पार्टी का ना हो और सेनेट में गया हो। हमारी खसूसियात है कि कोई भी हमसे खरीदो फरोख्त की बात नहीं करता। अवाम की जो अमानत है उस पर डाका डालने के लिए
کوئی کمپرومائز ہم اس پر نہیں کر سکتے. ہم آج بھی اس پر قائم ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں دھاندلی کی گئی، آج سینٹ میں بھی اسی طرح دھاندلی کا انتظام ہو رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین نیب کے بیانات کو نہیں مان سکتے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے. اسلام آباد میں اساتذہ پر بدترین تشدد ریاستی دہشت گردی ہے. کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ جنید انور، ملتان. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے ملتان سے. ڈاکٹرز کا نان سیلری الاؤنس کی ادائیگی کے معاملے کے حوالے سے ہیلتھ آفس اور پی ایم اے ڈاکٹرز کے درمیان ٹھن گئی. پی ایم اے ملتان نے سی ای او ہیلتھ کے خلاف احتجاج کی کال دے دی. ہیلتھ آفس جان بوجھ کر نان سیلری الاؤنس کی ادائیگی نہیں کر رہا. کل سی ای او ہیلتھ آفس کے باہر بھرپور احتجاج کیا جائے گا. ہیلتھ آفس ایپکا کا پی ایم اے ڈاکٹرز کے خلاف انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ. رحیم یار خان میں چیمبر آف کامرس کے صدور کی 3 روزہ بیٹھک سج گئی. پہلے روز سابق صدر چیمبر آف کامرس عبدالرؤف مختار نے شائع دیا کانفرنس کے انعقاد سے صنعتی ترقی کی نئی راہیں متعین ہوں گی. آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس کے پہلے روز چیمبر صدور، سینئر نائب صدور اور نائب صدور کو خوش آمدید کہا گیا. کانفرنس میں ملک بھر سے 45 چیمبر آف کامرس کے صدور شریک ہیں. صدر رحیم یار خان چیمبر آف کامرس خواجہ بشیر احمد اور عشائیہ کے میزبان عبدالرؤف مختار کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان کے چیمبر صدور کی میزبانی رحیم یار خان کے لیے اعزاز ہے. کانفرنس میں زراعت اور صنعت کو مستحکم کرنے کے بارے لاہے عمل طے کیا جائے گا. یہ ایک پاکستان لیول پہ ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے. اس کا مین مقصد یہی ہے ایک کہ جو ہماری جو اکانومی ہے پاکستان کی، جس میں اسپیشلی جو ہماری ایگریکلچر ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، اس کے اوپر مل بیٹھ کر کوئی لاہا عمل بنایا جائے، اور دوسرا جو ہماری انڈسٹری ہے جو اس کے مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے. ہمارا پروگرام یہ 3 روزہ کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ یہ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ عبدالرؤف مختار صاحب کی طرف سے اشاعہ تھا. اس سے بعد جیسے انہوں نے بتایا اس وقت ہمارے پاس تقریباً پورے ملک سے 40 صدور آ چکے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مہمان ایس پی پی بی پی ان کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہے. چیمبر آف کامرس رحیم یار خان کے عہدیداروں نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا. ان کا کہنا تھا کہ کانفرنس کے انعقاد سے ملکی معیشت کو استحکام دینے کی کوشش کی جائے گی. رحیم یار خان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ آل پاکستان پریزیڈنٹ چیمبر کے پریزیڈنٹ یہاں پہ پورے پاکستان کے اکٹھے ہوئے ہیں، جس میں 45% تقریباً پریزیڈنٹوں نے شرکت کی. یہ رحیم یار خان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. جنوبی پنجاب کی ہماری پہلی دفعہ کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. ہمارے تمام پاکستان کے چیمبرز نے ہم سے بہت محبت بھرا سلوک کیا ہے. رحیم یار خان نے یہ انیشیٹو لیا، رحیم یار خان کا چیمبر نے یہ انیشیٹو لیا. اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. رحیم یار خان از این اپ کمنگ مارکیٹ انشاءاللہ تعالی. اس کی اسٹریٹجک لوکیشن اتنی اہم ہے کہ یہ 3 صوبوں کے سنگم پہ واقع ہے. دوسرے روز چیمبر سیکریٹریٹ میں کانفرنس ہوگی. اس کے بعد مہمانوں کو چولستان میں جیپ ریلی بھی دکھائی جائے گی. رحیم یار خان کی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے نئی سرمایہ کاری بھی متوقع ہے. کیمرامین انور سور کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. حکومت پنجاب کے حکم پر یوریا کھاد کی مصنوعی قلت کرنے والوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاری. کمشنر کا یوریا کھاد کے ذخیرہ اندوزوں، گرام فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا. کمشنر نے محکمہ زراعت سے جعلی ادویات اور کھاد کی قلت کرنے والوں کے خلاف اب تک کی کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی ہے. حکومت پنجاب کے حکم پر یوریا کھاد کی مصنوعی قلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود نے یوریا کھاد کی ذخیرہ اندوزوں اور گرام فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جعلی زرعی ادویات اور کھاد مافیا کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے. ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس. قبضہ مافیا اور غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس ہوا. قبضہ مافیا اور غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر نے سرکاری راضی واگزار کرانے سے متعلق بریفنگ دی. انہوں نے بتایا کہ 35 کنال سے زائد سرکاری راضی واگزار کرا لی گئی ہے. ہائی کورٹ کی شہر اولیا کی خوبصورتی کے لیے شاندار باؤلنگ. ڈی کلاس بس اڈے ملتان شہر سے آؤٹ. کمشنر ملتان کا انتظامیہ کو فوری کارروائی کا حکم. تمام اڈوں کو جنرل بس سٹینڈ میں مناسب جگہ دینے کا اندیا دے دیا. ملتان انتظامیہ نے غیر قانونی ویگن اڈوں کے خلاف طویل قانونی جنگ جیت لی. 27 سال تک ضلع انتظامیہ عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ میں مقدمات کی پیروی کرتی رہی. ٹرانسپورٹ مافیا نے ہر اربہ آزمایا لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اڈا مالکان سے جگہ واگزار کرانا ایک بڑا چیلنج. آج ایک کیس ہمارے حق میں ڈیسائیڈ ہوا ہے جس میں ڈیرا اڈا کی جتنی بھی اسٹینڈز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم شفٹ کریں گے جنرل بس سٹینڈ میں. اس سے ایک تو جنرل بس سٹینڈ کا ریونیو
इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट के खजाने में सारे पैसे जमा होंगे, और जो रास्ते में जगह जगह पे बदतखोरी हो रही है उसको हम ख़त्म करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डेरा अड्डा वैगन स्टैंड के अड्डा कल्चर से कारोबार मुतासिर हो रहा था। वैगन स्टैंड आबादी के लिए भी सिक्योरिटी रिस्क थे। इन स्टैंड में आने वाली वैगनें पूरे शहर की ट्रैफिक जाम कर देती हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक की इश्यूज़ हैं मुल्तान में, आपको पता है ट्रैफिक की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे मेन हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो एम्बुलेंसेस चौक हो जाती है, ट्रैफिक चौक हो जाता है, जिससे काफ़ी मुश्किल होती है लोगों को। तो उस हवाले से आज का जो डिसीजन है कोर्ट का, बहुत डिटेल जजमेंट आई है, और हमारा अब ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अदालत ने मालकान को जनरल बस स्टैंड से बसें चलाने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जनरल बस स्टैंड में सहूलियात में मजीद इजाफा किया है। इस फैसले से जनरल बस स्टैंड की आमदनी भी बढ़ेगी। मुल्तान सूबे के 5 बड़े शहरों में शुमार होता है। गल्ला मंडी, टिम्बर मार्केट और लोहा मंडी को भी शहर से बाहर शिफ्ट करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत की जरूरियात को मद्देनजर रखकर प्लानिंग की जा रही है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। नवाज शरीफ सराय यूनिवर्सिटी मुल्तान में नई मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया। तकरीब में चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड सरदार तनवीर इलियास ने शिरकत की है। मस्जिद के संगे बुनियाद रखने के बाद जामुन के पौधे भी लगाए गए। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में नई मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया गया। संगे बुनियाद चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड सरदार तनवीर इलियास ने रखा और मस्जिद का नाम फातिमातुज़ ज़हरा रखा गया। संगे बुनियाद रखने के बाद वीसी नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली और सरदार तनवीर इलियास ने जामुन के पौधे भी लगाए। ये तो बहुत बड़ा कदम है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी को आगे बढ़ के इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए और हमें जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करना चाहिए, ताकि लोग अपने जो बाकी रूहानी फैज़ है इससे हासिल करें, यहाँ पे तिलावत करें, यहाँ पे नमाज पढ़ें। चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि यूनिवर्सिटी में तलबा और तालबात के लिए मस्जिद काफी अहमियत रखती है। अभी तक यूनिवर्सिटी में कोई मस्जिद नहीं थी। वाइस चांसलर नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ ने एक अहम कदम उठाया है। ये नक्शा बड़ा यूनिक है, ये ऑर्डिनरी मास्क का नक्शा नहीं है, ये एक बड़ा यूनिक नक्शा है। टर्की से एक बंदे ने पीएचडी की, बच्चा जो पीएचडी करके आया, उसने पहला प्रोजेक्ट जो किया इसका नक्शा बनाया, और ये इस इलाके के लिए, वैसे तो मसाजिद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी माशाल्लाह खूबसूरत होती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत होगी। डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि जल्द ही मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो जाएगी और लोग यहाँ अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज होंगे। कैमरामैन हारून के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। सरगोदा में कमिश्नर एफबीआर असद ताहिर की गोल चौक मस्जिद आमद। नमाज जुमा के मौका पर शहरियों से खिताब किया। कहते हैं टैक्स गुजार और एफबीआर के दरमियान फासला कम करना है। इसी हवाले से फसीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। में कमिश्नर एफबीआर असद ताहिर जप्पा ने मरकजी जामिया मस्जिद गोल चौक में मेंबर पर खड़े होकर खिताब किया। इस मौका पर ताजर बरादरी, शहरियों और एफबीआर सरगोदा जोन 2 की पूरी टीम मौजूद थी। कमिश्नर एफबीआर ने टैक्स अदायगी की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि वो एफबीआर और ताजरों के दरमियान एतमाद की फिजा कायम करने के लिए कोशा हैं। मस्जिद में खिताब का मकसद टैक्स कवानीन से आगाही और गलत फहमियों को दूर करना है। ये उसी डर के खात्मे के लिए अमली तौर पर कदम उठाया गया है, और ये मस्जिद में आगाही मुहिम जो है ये मेरे इस प्रोग्राम का कलीदी अंसर है। इसका मकसद है कि अवाम और एफबीआर के दरमियान जो बामी एतमाद और तावन की फिजा को कायम करना है। इस मौका पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। कारी वकार अहमद उस्मानी ने कमिश्नर की काविश को सराहा। मोहतरम असद ताहिर जप्पा साहब, कमिश्नर एफबीआर सरगोदा, इनकी ये काविशें बहुत अच्छी हैं और मेरा ख्याल है 18-20 साल मुझे हो गए यहाँ पे, ये पहला ऐसा कदम है जो इन्होंने उठाया। डिप्टी कमिश्नर एफबीआर हेडक्वार्टर जफर जमाल ने एफबीआर से ताउन की अपील की। यहाँ पे चूंकि जो भी हमारे इदारे हैं उनके और अवाम के दरमियान फिजा की एतमाद को, जो एक फिजा है उसको बेहतर करने के लिए और एक ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। नमाज जुमा की अदायगी के बाद खुली कचहरी में ताजर बरादरी के सवालों के जवाब भी दिए गए। उन्होंने हर महीने का पहला जुमा सरगोदा, दूसरा मियांवाली, तीसरा खुशाब और चौथा भक्कर में अदा करने का ऐलान किया। ताजर बरादरी के नुमाइंदों ने भी उन्हें खुशामदीद कहा। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। महकमा तालीम मियांवाली मुतहरिक। कोरोना के बाद तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए AEOs और हेड टीचर को ट्रेनिंग दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में जारी हैं।
में पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने AEOs और हेड टीचर को ट्रेनिंग करवाई। रिसर्च ऑफिसर महबूब आलम ने बताया कि तालिमी नुकसान पूरा करने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। पेपर में सवालात महदूद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे कम वक्त में तैयारी कर सकें। यहाँ के हेड टीचर्स, यहाँ के डेप्टीज, यहाँ के DOs और यहाँ के AEOs जो हैं उनसे हम अपनी फाइंडिंग्स भी शेयर करें कि बच्चों का कितना लॉस हुआ है उन 4 सब्जेक्ट्स में जिनमें हमने इनसे एग्जाम लिया है और कितना जो है उसे अब हम किस तरह से दूर कर सकेंगे। हम आगे जाके अपने टीचर्स को, जो हेड्स हैं हमारे, वो टीचर्स को जाके ये ट्रेन करेंगे और उन वीक SLOs और जो ग्रे एरियाज हैं उनके ऊपर अब बेहतर अंदाज से उनको मजीद बढ़ा के उस लॉस की, उस डेफिशिएंसी को मेकअप किया जाएगा। ऑफिसर नवीद अहमद ने बताया कि सवालात के मौके बढ़ा दिए गए हैं ताकि बच्चों के लिए हल आसान हो। उर्दू, अंग्रेजी, रियासी और साइंस के मज़ामीन को मुख्तसर कर दिया गया। पूरे पंजाब में ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक का 25 MCQs का टेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हो चुका है। वो बच्चे अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करके अगली जमातों में जा सके। प्रेप से लेकर मिडल तक इम्तहानात पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के मखसूस करदा कोर्स में से होंगे। रहीम जार खान ज्यादती के केसेस को बेहतरीन तफ्तीश, सबूत, फ्रांसिक और MLC के हवाले से तरबियत दी गई। सिविल जज सैयद एजाज अली शाह, मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर मसूद जहांगीर और फ्रांसिक टीम ने तरबियती लेक्चर दिए। जुर्म को सजा और किसी की बेगुनाही का दारोमदार तफ्तीश और इसके सबूतों पर होता है। रेप के केसेस बढ़ जाने पर इसकी रोकथाम के लिए मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए बेहतरीन तफ्तीश, सबूत, फोरेंसिक, MLC और तफ्तीशी मिसल की जरूरत होती है। जिला भर से 60 तफ्तीशी ऑफिसर्स को रेप केसेस में तरबियत दी गई। सिविल जज सैयद एजाज अली शाह, मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर मसूद जहांगीर, फोरेंसिक टीम और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर ने अपने लेक्चर में तफ्तीशी खामी को दूर करके हक और सच की तलाश में बेहतरी लाने के लिए तरबियत दी। SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाहजेब का कहना था कि बेहतरीन तफ्तीश के मराहिल मुल्ज़िम को सजा दिलवा सकते हैं। केस बहुत सेंसिटिव होता है, टोटली डिपेंडेंट होता है मेडिकल साइंस पे और इस पे फोरेंसिक लेबोरेटरी के टेस्ट पे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था और हमने इसके लिए पूरे ज़िले से तकरीबन कोई 60 IOs हैं जो बुलाए हैं जिनकी आज ट्रेनिंग हुई है और इस तरह इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। मेडिको लीगल ऑफिसर शेखजाद हस्पताल डॉक्टर मसूद जहांगीर का कहना था कि MLC के लिए शवाहिद को महफूज करना जरूरी है कि क्राइम सीन पे क्या करना है, कौन सा एविडेंस लेना है, क्योंकि एविडेंस जब कंप्लीट होंगे और हर एविडेंस वो आ जाएगा जब, तो इसके बाद जो है मुजरिम बच नहीं सके। रेप केसेस की रोकथाम के लिए मुल्ज़िमान को कड़ी सजा दिलवाने के लिए तफ्तीशी अमल शफाफ और शवाहिद को महफूज बनाने के लिए तरबियती वर्कशॉप अहम कदम है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम जार खान में पुलिस वेलफेयर पब्लिक स्कूल में बच्चों ने अपने फन पारों के साथ नुमाइश सजाई। बच्चों ने समाजी पैगामात, साइंस, मैथ और कैलीग्राफी पर मुश्तमिल फन पारों को एग्जीबिशन में पेश किया। इसी हवाले से आसिम सदीक रिपोर्ट करेंगे। पुलिस वेलफेयर पब्लिक स्कूल रहीमिया खान के बच्चों को अपनी महारत के जोहर दिखाने का मौका मिला तो बच्चों ने अपनी एग्जीबिशन को फन पारों से सजा दिया। किसी बच्चे ने खुद और कुछ ने इज्तिमाई काविशों से फन पारे बनाए। बच्चों ने सरसब्ज पाकिस्तान की अहमियत समेत मुख्तलिफ समाजी पैगामात को भी फन पारों के जरिए पेश किया। बच्चों ने साइंस और मैथ से मुतालिक अपनी तालीम को भी फन पारों में ढाला। एग्जीबिशन में कैलीग्राफी के नमूने भी बच्चों की महारत बयान कर रहे थे। हमने मिनी सोलर सिटी बनाया है, कैलीग्राफी की है और एक ऑयल पेंटिंग भी की है। पर्पज यही है कि ये इनिशियल पिस्टन है और ये फाइनल पिस्टन है, जिससे ये जो इनिशियल पिस्टन को जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो इसमें अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा हो जाती है, जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो लिफ्ट करना स्टार्ट हो जाता है। और इंडस्ट्रीज में भी ऐसे ही होता है कि जो हैवी मशीनरी होती है जिसे आसानी से ऊपर नहीं ले जाया जा सकता, उसमें भी ये लिफ्ट यूज की जाती है। एग्जीबिशन के मेहमान खुसूसी शेख नदीम मुनीर और प्रिंसिपल आबदा परवीन का कहना था बच्चों की बड़ी महारत से तैयार किए गए फन पारे इनकी मेहनत का सबूत है। बच्चों का आर्ट्स एग्जीबिशन देखा बड़ा खूबसूरत अंदाज में, जो मुझे यूनिकनेस नजर आई कि बच्चों के आइडियाज बड़े नए थे और वो बच्चे देख रहे हैं कि टीचर्स ने जो कॉन्सेप्ट्स उनको दिए हैं वो सारे इस वक्त की ज़रूरत है। जैसे पोल्यूशन के ऊपर बच्चों ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में मॉडल्स को प्रेजेंट किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली दैट वी आर सेलिब्रेटिंग ओवर हियर and this is the first expression of my students, and the basic thing is that we just want that they must show their skills. So this is the basic purpose, and students come up with a lot of ideas. बच्चों को थोड़ी सी रहनुमाई और कुछ करने का मौका मिल जाए तो ये किसी से भी कम नहीं। बच्चों ने सिर्फ 15 दिन की मेहनत में 100 फन पारे बनाकर अपनी महारत का सबूत दिया। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान के ताजरों ने जुमे की छुट्टी को खूब एंजॉय किया। स्पोर्ट्स ग्राउंड खूब हल्ला गुला किया। राना 11 और कुरैशी 11 के दरमियान क्रिकेट मैच भी खेला गया।
छुट्टी के रोज मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में ताजिरों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। कुरैशी 11 और राना 11 के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। कुरैशी 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स में 90 रन बनाए। राना 11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पूरा कर लिया। हम लोग मैच खेलते हैं क्रिकेट का, और जिस्म को फिटनेस रखने के लिए, यूथ को ग्राउंड में लाने के लिए कि हम सारे दोस्त इकट्ठे हों और क्रिकेट का लुत्फ अंदोज मजा लें। कभी हम फुटबॉल खेलते हैं, कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। हारने वाली टीम कुरैशी 11 का कहना था कि हार जीत खेल का हिस्सा है, जीतने वाली टीम को मुबारकबाद देते हैं। फ्राइडे को हम लोग ये एक प्रोग्राम इत्माम करते हैं इस चीज़ों का, ताकि ग्राउंड्स आबाद हो सकें। जो ग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, जो लोग वो भी ग्राउंड के अंदर अब आना शुरू हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र, और इनका ये मिशन जो है वो कामयाब होगा। ताजिरों का कहना है कि वो हर जुमे के दिन मैच खेलते हैं, जिससे दोस्तों के हमरा वक्त गुजारने के साथ साथ फिटनेस भी हासिल होती है। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद का स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद होना अस्पतालों को वीरान करने के साथ साथ ग्राउंड्स को आबाद करना है। कैमरामैन करार हैदर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।